ಜಕಾರ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಹಿಂದಿ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ प्रश्न 1 निम्नलिखित प्रश्नों के लिए 4 विकल्प सुझाए गए हैं. सर्वाधिक उचित विकल्प चुनकर उसके क्रमाक्षर सहित पूर्ण कीजिए. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಪ್ರಶ್ನೆ 1 ನಿಮ್ನಲಿಖಿತ में से ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಶಬ್ದ है. ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಶಬ್ದ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 4 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಿತಾ, ದಾದಾ, ನಾನಿ, ಚಾಚಾ. ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ನಾನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ. ಪ್ರಶ್ನೆ 2 किताब शब्द का बहुवचन रूप है. किताब शब्द बहुवचन रूप है ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ पुस्तक, किताब, किताबें, ग्रंथ. तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ किताबें ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿ ಉತ್ತರ. ಪಂಚವಟಿ ಶಬ್ದ में समास है. ಪಂಚವಟಿ ಪಂಚ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳೇ ಅದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿನ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹಾಕಬೇಕು? ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕು. ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ. ಪ್ರಶ್ನೆ 4 ಪರೋಪಕಾರ ಶಬ್ದ में संधि है. ಪರೋಪಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಂಧಿ ಪರೋಪಕಾರ ಅಗರ್ ऊपर एक ಮಾತ್ರ है ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಅದು ಗುಣಸಂಧಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಗುಣಸಂಧಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. कमर कसना मुहावरे का अर्थ है. तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका उत्तर है सी तैयार होना. कमर कसना ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ತಯಾರ್ होना. ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯಾ 6 ವರದಾನ್ ಶಬ್ದ का विलोम शब्द है. ವರದಾನ್ ಶಬ್ದದ ವಿಲೋಮ ರೂಪ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಉತ್ತರ ಡಿ ಅಭಿಶಾಪ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 7 माता पिता शब्द में प्रयुक्त विराम चिन्ह है. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಚಿಹ್ನೆ ಹೆಸರನ್ನ ಬರೆಯಬೇಕು. यह है ಯೋಜಕ ಚಿಹ್ನ. ಯೋಜಕ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯಾ 8 ಚಲನಾ ಶಬ್ದ का ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದ है. ಚಲನಾ ಎನ್ನುವಂತ ಶಬ್ದದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಕೊನೆಯ ಅಕ್ಷರದ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಆನ ಅಂತ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಚಲಾನ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ. प्रश्न संख्या मुख्य प्रश्न 2 निम्नलिखित प्रथम 2 शब्दों के सूचित संबंधों के अनुरूप तीसरे शब्द से संबंधित शब्द लिखिए ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 4 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. सबसे पहले प्रश्न संख्या 9 ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. कावेरी नदी जोग. बिल्कुल सही उत्तर. जो क्या है? जल प्रपात है. प्रश्न संख्या 5 बलभद्र, बलराम, जशोदा. उत्तर ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಯಶೋದ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. अदे तरह प्रश्न संख्या 11 पहला दिन चप्पलें गायब थी. दूसरे दिन क्या गायब थी? दूसरे दिन गायब थी चादरें गायब थी. ಎರಡನೇ ದಿನ ಏನು? ಚಾದರಗಳು ಹೋಗಿದ್ವು, ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದ್ವು. ಪ್ರಶ್ನ 12 ಟ್ರೇನ್, ಭೂ ಯಾತ್ರಾ, ನೌಕಾ. ನೌಕಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ ಜಲ ಯಾತ್ರಾ. इन्हें ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए. 4 प्रश्न हैं, हर एक के लिए एक उत्तर है ಮಕ್ಕಳೇ. 13ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ पंडित राजकिशोर कौन थे? पंडित राजकिशोर यारागिದ್ರು. उसका उत्तर होगा पंडित राजकिशोर गरीब मजदूरों के नेता थे. प्रश्न 14 लेखक दूसरे दर्जे में क्यों सफर करना चाहते थे? इसका उत्तर होगा दूसरे दर्जे में सफर करने से 150 रुपए बचते थे ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ 15 ಮುಖ किसका पालन पोषण करता है? मुख ಯಾರನ್ನ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವುದಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ उत्तर होगा मुख शरीर का पालन पोषण करता है. प्रश्न 16 समय को खोने से क्या होता है? ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? उत्तर होगा समय के खोने से पछताना पड़ता है. प्रश्न 4 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में दीजिए. 8 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆ 8 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 2 ಅಂಕ. प्रश्न संख्या 17 बसंत राजकिशोर से 2 पैसे लेने से क्यों इनकार करता है ಎನ್ನುವಂತಹ बसंत की सच्चाई ಪಾಠದಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. उत्तर बसंत राजकिशोर से 2 पैसे लेने से इनकार करता है क्योंकि बसंत परिश्रम के बिना मिलने वाले पैसों को भीख समझता था. ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ बसंत ಆ ಒಂದು ದುಡ್ಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. प्रश्न 18 अब्दुल कलाम जी का बचपन निश्चिंतता और सादगी में बीता कैसे? मेरा बचपन ಪಾಠದಿಂದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಉತ್ತರ ಹೀಗೆ ಬರೆಯಬೇಕು. कलाम जी का बचपन बड़े ही निश्चिंतता और सादगी में बीता क्योंकि उनके पिता आवश्यक एवं ऐश व आराम वाली चीजों से दूर रहने वाले आडंबरहीन व्यक्ति थे, परंतु घर पर सभी आवश्यक चीजें समुचित मात्रा में सरलता से उपलब्ध थी. इसलिए उनका बचपन बड़ी निश्चिंतता और सादगी में
ಬೀತಾ ಎನ್ನುವಂತ ಉತ್ತರವನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 19 दुकानदार ने अपने नौकर से ಇದು ಲೇಖಕ ने दुकानदार ने लेखक से क्या कहा ಎನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಬೇಕು. सो मಕ್ಕಳೇ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ दुकानदार ने लेखक से कहा कि बाबूजी बड़े मजेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाएं, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी. प्रश्न संख्या 20 किंद्रू लालिम और किंचा लालीदाम जंगल की ओर क्यों चल पड़े ಎನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. सो उसका उत्तर होगा किंद्रू लालिम और किंचा लालीदाम जंगल की ओर मकान बनाने के लिए चल पड़े ಎನ್ನುವಂತದ್ದು ಉತ್ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 21 मनुष्य के लिए सुख की प्राप्ति कब संभव है. उत्तर होगा समय बहुत अनमोल है, इसलिए समय नष्ट नहीं करना चाहिए. आलस्य और बहाना बनाना छोड़कर मेहनत से काम करने से मनुष्य के लिए सुख की प्राप्ति संभव है ಎನ್ನುವಂತದ್ದು ಇದರ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. प्रश्न संख्या 22 कृष्ण अपनी माता यशोदा के प्रति क्यों नाराज है. तो इसका उत्तर होगा कृष्ण अपनी माता के प्रति नाराज है क्योंकि माँ यशोदा ने केवल कृष्ण को ही मारना सीखा है और भाई पर गुस्सा तक नहीं करती. इस कारण से कृष्ण अपनी माता से नाराज है ಎನ್ನುವಂತದ್ದು ಇದರ ಉತ್ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 23ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಪೂರಕ ವಾಚನದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 23 शनि सौर मंडल का सबसे सुंदर ग्रह है, कैसे स्पष्ट कीजिए ಎನ್ನುವಂತದ್ದಿದೆ. उत्तर शनि ग्रह के चहुं ओर वलय दिखाई देते हैं, मानो प्रकृति ने गले में खूबसूरत हार डाल दिया है. इन्हीं वलयों या कंकनों से शनि सुंदर एवं मनोहर ग्रह माना जाता है. अथवा शनि का निर्माण किस प्रकार हुआ है, शनि निर्माण ಯಾವ ತರನಾಗಿದೆ. सो ಅದರ उत्तर ಆಗಿರುತ್ತೆ शनि ग्रह का मंडल हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और एमोनिया गैसों से बना है ಎನ್ನುವಂತದ್ದು ಅದರ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ. प्रश्न संख्या 24 ಕೂಡ ಇದು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳೇ ಪೂರಕ ವಾಚನದಿಂದ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. झूठ का सहारा लेते हैं तो क्या क्या सहना पड़ता है ಎನ್ನುವಂತದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಉತ್ತರ झूठ बोलने से व्यक्तित्व कुंठित हो जाता है, लोगों का विश्वास उठ जाता है. एक झूठ छुपाने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं और कहीं पोल खुल गई तो मुंह काला करना पड़ता है और अपमानित होना पड़ता है ಎನ್ನುವಂತದ್ದು ಇದರ ಉತ್ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. अथवा ಇನ್ನೊಂದೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, अनवर ने मीना मैडम से क्या कहा. अनवर ने मीना मैडम से क्या कहा ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. सो उत्तर होगा अनवर ने मीना मैडम से कहा समस्त देशवासियों के प्रति भाईचारे का भाव रखना और जाति, धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों को दूर रहना, सभी भेदभावों से दूर रहना चाहिए ಹೀಗೆ ಅನ್ವರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ 5 ನಿಮ್ನಲಿಖಿತ ಪ್ರಶ್ನों के उत्तर 3 या 4 ವಾಕ್ಯವಿದೆಯೇ 9 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ 3 ಅಂಕ. सो 27 ಅಂಕಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಲಭಿಸುತ್ತವೆ. प्रश्न संख्या 25 गिल्लू के प्रति महादेव वर्मा जी का ममता का वर्णन कीजिए. गिल्लू के प्रति महादेव वर्मा का रिश्ता बहुत ही ममत्व का था. पॉइंट्स ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. जब गिल्लू घायल था तब अपने कमरे में लाकर रुई से रक्त पोंछकर पेंसिलिन का मरहम लगाया. डालियों में रुई बिछाकर गिल्लू के लिए मकान बनाया था. गिल्लू के खाने के लिए काजू तथा बिस्कुट देती थी. वर्मा जी ने गिल्लू को मुक्त करने के लिए खिड़की की जाली खोली थी. अपनी थाली के पास बैठकर एक एक चावल का दाना खाना सिखाया. गिल्लू के अंतिम दिनों में पंजे ठंडे होने पर हीटर जलाकर उष्णता देने का प्रयास किया ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಒಂದು 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಬರೆದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ 3 ಅಂಕಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತವೆ. ಮುಂದೆ ಬರೆದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, रोबोनिल और रोबोदीप की मुलाकात का वर्णन कीजिए. रोबोनिल ಮತ್ತು रोबोदीप ಹೇಗೆ ಭೇಟಿಯಾದರು ಎನ್ನುವಂತದರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಬೇಕು. रोबोनिल सक्सेना परिवार का रोबोट था, रोबोदीप शर्मा परिवार का रोबोट था. रोबोनिल रोज शाम को शेरू को टहलाने के लिए ले जाता था. ऐसे में एक दिन उसकी मुलाकात रोबोदीप से हुई. रोबोदीप शर्मा परिवार के कुत्ते झबरू को घुमाने आया करता था. दोनों रोबोटों के बीच दोस्ती हुई. फिर हुई तो शेरू और झबरू भी आपस में हिल मिल गए ಎನ್ನುವಂತದ್ದನ್ನು ಉತ್ತರ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. 27ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, दक्षिणी शिखर पर चढ़ते समय बिच्छिंद्री के अनुभव के बारे में लिखिए ಎನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಉತ್ತರ दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी. उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों के चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था.
नेक्स्ट पॉइंट बरेबेको, बिच्छंद्री ने देखा कि थोड़ी दूर तक कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधी नीचे चली गई है। बिच्छंद्री की सांसों मानो एकदम रुक सी गई थी। बिच्छंद्री को लगा कि सफलता बहुत नजदीक है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर 1:07 पर एवरेस्ट की चोटी पर बिच्छंद्री खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला होने का गौरव बिच्छंद्री जी को प्राप्त है। ಹೀಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ 3 ಅಂಕಗಳು ನಮಗೆ ಲಭಿಸುತ್ತವೆ। ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ, सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है कैसे ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ। उत्तर होगा सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है जिसने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है। ಮುಂದೆ ಬರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕು। सोशल नेटवर्किंग के कई साइट्स हैं जैसे फेसबुक, ऑर्कुट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि। इन साइटों के कारण देश विदेश के लोगों के रहन सहन, वेशभूषा, खान पान के अलावा संस्कृति, कला आदि का प्रभाव शीघ्र हमारे समाज पर पड़ रहा है ಎನ್ನುವಂತ ಉತ್ತರವನ್ನು ಮಕ್ಕಳೇ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ 29, सम्मेलन में लेखक के क्या क्या अनुभव रहे संक्षेप में लिखिए। सम्मेಳನದಲ್ಲಿ ईमानदारों के सम्मेलन में लेखकರಿಗೆ ಆಗಿರುವಂತ ಉತ್ತರವನ್ನ अनुभवಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। लेखक को ईमानदारों के सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। स्टेशन पर लेखक का खूब स्वागत किया गया और 10 बड़ी फूल मालाएं पहनाई गई। लेखक को होटल के एक बड़े कमरे में ठहराया गया। लेखक ने सम्मेलन का उद्घाटन किया और भाषण दिया। लेकिन लेखक को सम्मेलन में बहुत सारे अनुभव हुए। जैसे पहले दिन लेखक के चप्पलें गायब थी और कमरे में आकर देखा तो बिस्तर से एक चादर गायब थी। दूसरे दिन और 2 चादरें गायब थी। उसके अगले दिन देखा तो धूप का चश्मा गायब हो चुका था। ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದು ಮಕ್ಕಳೇ ಇನ್ನು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕು। तीसरे दिन रात को बिस्तर से, ಇದನ್ನ बिस्तर ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ, बिस्तर से कंबल भी चोरी हो चुकी थी। अंत में कमरे का ताला तक चोरी हो गया था। लेखक ने सोचा कि थोड़ी देर और रुका तो मुझे भी चुरा लिया जाएगा। इस प्रकार लेखक को ईमानदारों के सम्मेलन में बहुत ही बुरे अनुभव हुए ಎನ್ನುವಂತಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬರೀಬೇಕು। ಮುಂದೆ ಬರೋದು ಮುಖ್ಯ प्रश्न संख्या 30, अभिनव मनुष्य कविता में कवि मानव की भौतिक साधना का वर्णन कैसे करते हैं ಎನ್ನುವಂತದ್ದು ಉತ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ। ಅದರ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರೀಬೇಕು। उत्तर, कवि रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि मनुष्य ने प्रकृति के हर तत्व पर विजय प्राप्त की है। विद्युत, भाप और नदी को मनुष्य ने अपने वश में कर लिया है। मानव के हुक्म पर ही पवन का ताप चढ़ता और उतरता है। मानव सागर, पर्वत और नदी को एक समान लांघ सकता है। मनुष्य का यान गगन में जा रहा है। मनुष्य के करों को देखकर परमाणु भी कांपते हैं। इस प्रकार ಮಾನವ ने ಭೌತಿಕ ಸಾಧನ की है ಎನ್ನುವಂತದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಬರೀಬೇಕು। 3 ಅಂಕಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಮಕ್ಕಳೇ। ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 31, भारत माँ के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन कीजिए ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ। जिसका उत्तर होगा, मातृभूमि के खेत हरे भरे और सुहाने हैं। यहाँ के वन उपवन फल फूलों से युक्त हैं। मातृभूमि के अंदर खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है। ಭಾರತ ಮಾತಾ ಮುಕ್ತ ಹಸ್ತ से ಸುಖ ಸಂಪತ್ತಿ ಧನಧಾಮ को बांट रही है। ಹೀಗೆ ಒಂದು 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ 3 ಅಂಕಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ। ಇನ್ನು ದೋಹೆ का ಭಾವಾರ್ಥನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ। ತುಳಸಿ ಸಾತಿ ವಿಪತ್ತಿ के विद्या विनय विवेक साहस सुकृति सुसत्यवृत्ति राम भरोसो एक ಎನ್ನುವಂತ ಈ ದೋಹೆಗೆ ಭಾವಾರ್ಥ ಬರೀಬೇಕು। तुलसीदास जी कहते हैं, मनुष्य पर जब संकट आता है तब विद्या विनय तथा विवेक ही उसका साथ निभाते हैं। जो राम पर भरोसा करता है वह साहसी, सत्यवृत्ति और सुकृतवान बनता है ಎನ್ನುವಂತದನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಇನ್ನು ಗದ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಅನುವಾದವನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। प्रश्न संख्या 33, इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं। इंटरनेट की सहायता से बेरोजगारी को मिटा सकते हैं ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಥವಾ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಅಂಗವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ। ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡೇ ಖರೀದಿಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು। ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿರುದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು। आगे चलकर मुख्य प्रश्न 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5 या 6 वाक्यों में लिखिए। 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ 2 ಅಂಕ। तो यहाँ पर पूछा गया, कर्नाटक के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। कर्नाटकದ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯದ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ। इसका उत्तर हमें लिखना है, कर्नाटक के प्राकृतिक सुषमा नयन मनोहर है। कर्नाटक राज्य को प्रकृति माता ने अपने हाथों से संवार कर सुंदर और समृद्ध बनाया है। कर्नाटक के पश्चिम दिशा में अरबी समुद्र लहराता है।
इस प्रांत के दक्षिण से उत्तर के छोर तक फैली लंबी पर्वतमालाओं को पश्चिमी घाट कहते हैं और पश्चिमी घाटों के कुछ भाग को ही सह्याद्री भी कहा जाता है। यहाँ के ದಕ್ಷಿಣ ದಿಶಾ ಮೇ ನೀಲಗಿರಿ ಪರ್ವತಾವಲಿಯ ಶೋಭಾಯಮಾನ್ ಹೇ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾವು ಅತಿ ಸರಳವಾಗಿ ಒಂದು 4-5 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬರ್ತೀನಿ 3 ಅಂಕಗಳು ಲಭಿಸ್ತವೆ ಅಥವಾ 4 अंक लभिस्तवे। अथवा कर्नाटक की शिल्प कला का वर्णन कीजिए, ಇದನ್ನಂತೂ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ। इसका उत्तर होगा कर्नाटक राज्य की शिल्प कला अनोखी है। बादामी ऐहोळे पट्टदकल्लु में जो मंदिर हैं उनकी शिल्प कला वास्तुकला अद्भुत है। बेलूरू हळेबीडु सोमनाथपुर के मंदिर में पत्थर की जो मूर्तियां हैं वह सजीव लगती हैं। यहाँ यह सुंदर मूर्तियां हमें रामायण महाभारत पुराणों की कहानियां सुनाती हैं। श्रवण बेलगोल में 57 फुट ऊंचे गोमटेश्वर की एक शिला प्रतिमा है जो दुनिया को त्याग और शांति का संदेश दे रही है। विजयपुरा के गोल गुंबज के विस्परिंग गैलरी वास्तुकला का अद्वितीय दृष्टांत है। मैसूर का राजमहल कर्नाटक के वैभव का प्रतीक है। सेंट फिलोनिमा चर्च जगनमोहन राजमहल का पुरातत्व वस्तु संग्रहालय अत्यंत आकर्षणीय है ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು। इन्हें पद्यान कोटिर्तारे। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो, तुम संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो। तुम ಈಗ 4 ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಬರೆದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ 4 ಅಂಕಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ। ಇನ್ನು ಗದ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡು ಕೆಳಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಬೇಕು। पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए प्रदूषण के सभी कारणों को समझदारी से दूर करना होगा। वनों की कटाई को रोकनी होगी, वृक्षारोपण के कार्यक्रम को प्राथमिकता देनी होगी। वैज्ञानिकों को प्रदूषण रोकने के नए नए तरीकों का आविष्कार करना होगा, तभी मानवीय जाति का कल्याण होगा और जीव सृष्टि भी सुरक्षित रह सकेगी ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು पैसेज ಆಗಿದೆ। ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, जीव सृष्टि की सुरक्षा कब होगी? इसका उत्तर होगा वैज्ञानिकों को प्रदूषण रोकने के नए नए तरीकों का आविष्कार करना होगा, तभी मानव जाति का कल्याण होगा, जीव सृष्टि भी सुरक्षित रह सकेगी ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಉತ್ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ। पर्यावरण शुद्ध रखने के लिए क्या करना चाहिए ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ। ಅದರ ಉತ್ತರ पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए प्रदूषण के सभी कारणों को समझदारी से दूर करना होगा, ये उत्तर ಆಗಿರುತ್ತೆ। प्रदूषण दूर करने का एक कारण बताइए, तो इसका उत्तर होगा प्रदूषण को दूर करने के लिए वनों की कटाई रोकनी होगी। ಪ್ರಶ್ನೆ 4, प्रदूषण दूर करने के लिए वैज्ञानिकों को क्या करना चाहिए ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ। सो ಮಕ್ಕಳೇ, प्रदूषण को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों को नए नए तरीकों का आविष्कार करना चाहिए ಅನ್ನೋದು ಆಗಿರುತ್ತೆ। ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದು ಪ್ರಶ್ನೆ मुख्य प्रश्ने 8 37ನೇ प्रश्ने, दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर 12-15 वाक्यों में किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आबादी की समस्या ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತದನಂತರ ಸಮಯ का ಸದುಪಯೋಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಸ್ತಾವನಾ ಮಹತ್ವ ಅವಶ್ಯಕತೆ। ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನ ಒಂದು ಮಾದರಿ ನಿಬಂಧವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅರ್ಥ ಬರಿಬೇಕು, ತದನಂತರ ಮಹತ್ವ और ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬರಿಬೇಕು, ತದನಂತರ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬರಿಬೇಕು, ತದನಂತರ ಉಪಸಂಹಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಬರೀಬೇಕು। ಈ ಒಂದು ನಿಬಂಧ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದು ಪ್ರಶ್ನೆ मुख्य प्रश्ने 9, निम्नलिखित विषय के बारे में पत्र लिखिए। एक प्रश्न पूछा जाएगा, एक पत्र को लिखना है, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು। अपनी बहन के शादी के कारण 3 दिन की छुट्टी मांगते अपने प्रधान अध्यापक को एक पत्र लिखिए ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ पत्र ಕೇಳಲಾಗಿದೆ। ಅಥವಾ ಶಾಲಾ पर्यटन के लिए 2000 रुपए मांगते अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, 2000 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಂತ ತನ್ನ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕವನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು। ತದನಂತರ पूज्य पिताजी सादर प्रणाम ಇದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು। ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 लाइन ಅನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। मैं यहाँ आपके आशीर्वाद से सकुशल हूँ, मैं दिन रात पढ़ाई कर रहा हूँ, परीक्षा में भी अंक अच्छे आए हैं। हमारे स्कूल की ओर से अगले महीने 10 से 13 तारीख तक शैक्षिक यात्रा का आयोजन किया गया है, मैं भी जाना चाहता हूँ, इसलिए 2000 रुपए भेजने की कृपा करें। माताजी को मेरा प्रणाम, भाई को प्यार। ಇಷ್ಟು 4 ಅಂಕಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಲಾರದೆ ಬರೀಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ। ಇಲ್ಲಿ आपका ಹಾಕಬೇಕು, ಆಕೆ ಆಗಿದೆ, आपका ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ। आपका बेटा ಸಚಿನ್ ಹೆಸರನ್ನ ಹಾಕಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಬಕ ಅಂತ ಬರೀರಿ, ಸೇವಾ ಮೇ, ತದನಂತರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಬರೀರಿ, ಸೇವಾ ಮೇ ಶ್ರೀರಂಗಸ್ವಾಮಿ, घर नंबर 60, ज्योति निवास, नेताजी नगर, क्रिस्टल पैलेस समीप, कलबुर्गी जिला। ಹೀಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ
ನಿಮಗೆ 5 ಅಂಕಗಳು ಪತ್ರದಿಂದ ಲಭಿಸ್ತವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದ.